Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, students. I hope you and your families will be in good state of life. I wish you a very safe and sound and healthy Ramadan. Today we are going our first online lecture. In start, we have learned about data. We have taken some classes. I think some 2 or 3 weeks. We have discussed different aspects, different types of data, different definitions, and some basics about data. Today we will start how to present data. Actually, we have discussed the definition of statistics. We have learned that the process of collection, presentation, processing, analyzing, and interpreting the data is known as statistics. So, after collection of data, the collection techniques which we have discussed in our previous classes, today we will discuss how to present the data. Usually, data is when we collect data, data is actually in a raw form. So, first of all, we have to give it a meaningful presentation or meaningful form so that a statistician or researcher can apply different statistical tools to start his processing. So processing or analyzing of data. The first step for presentation of data is known as a frequency distribution. There are some other graphical tools or methods that are used to present the data, but first of all we will study how to organize the data. So first of all, the first step is, or first technique is frequency distribution. So first of all we will define frequency distribution. So frequency distribution is actually a process of organizing data into meaningful groups or classes. It means when we have a large set of data, we have a bulk of data. So first of all we have to organize it into different classes or different groups, meaningful groups. There is a whole process. There are different steps of organization of this data into meaningful groups. So we will discuss it step by step. First step is determining the number of groups or classes. So, so first of all, we have to decide, we have to determine in how many groups we have to organize our data. मतलब ये कि हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स या क्लासेस होनी चाहिए जिसमें से हम अपने गिवन डेटा सेट को ऑर्गेनाइज कर सकें. अब यूजुअली इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला या रूल तो नहीं है कि हम कितने नंबर ऑफ ग्रुप डिसाइड कर सकें. एक्सपर्ट्स जो हैं वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होने चाहिए, but on the basis of their knowledge regarding nature of data and the variation, amount of variation among the different values in a data set. लेकिन चूंकि हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम तो बिल्कुल एक बेसिक और लर्निंग लेवल पे हैं, तो हमें एक छोटा सा हमारे पास एक फार्मूला समझे या एक टेक्निक समझे जिससे हम जो नॉन एक्सपर्ट्स लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं या एक्चुअली इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब लोग ही स्टेटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें एक फार्मूला, बहरहाल एक टेक्निक या फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम डिसाइड कर सकें कि नंबर ऑफ कितने ऑप्टिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स हम डिसाइड करें जिनमें हमने पूरे डेटा सेट को अरेंज या ऑर्गेनाइज करना है. तो उसके लिए जो डेटा सेट यूज़ हो रहा है वो है k is equal to 1 plus 3.3 log of n. Students, I hope before listening this video आप लोगों ने अपना जो लेक्चर है वो डाउनलोड कर लिया होगा. आई होप कि स्क्रीन पे भी आपको जो है वो लेक्चर साथ साथ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इनके स्क्रीन में या वीडियो में कोई इशू आ रहा है तो आप अपने पास वो डाउनलोडेड लेक्चर्स जो हैं वो अपने पास रखें साथ, ताकि आपको साथ साथ समझ आए. दूसरा, आप अपने पास जो है वो पेन और कॉपी भी तैयार रखें ताकि कोई चीज़ अगर वहाँ से समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ से भी इसको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा, तो आप वो नोट कर लीजिएगा. तो जो फार्मूला है वो है k is equal to 1 plus 3.3 log of n. तो कैपिटल N मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा सेट. यूजुअली कैपिटल N जो है वो पॉपुलेशन साइज को डिटरमिन या डिनोट करने के लिए, सॉरी, पॉपुलेशन साइज को डिनोट करने के लिए यूज होता है. बट यहाँ हम, अगर हमारे पास सैंपल डेटा है तो हम उसको भी यहाँ पे कैपिटल N से डिनोट कर सकते हैं. अदरवाइज आप स्मॉल n यानी सैंपल साइज के लिए जो उसकी नोटेशन है स्मॉल n, वो भी आप यूज कर सकते हैं. 3.3 और 1 ये कांस्टेंट और फिक्स्ड वैल्यूज हैं, इनको आपने नहीं छेड़ना. n जो है वो वेरी कर सकता है. n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये डिपेंड करता है कि हमारा साइज ऑफ
साइज ऑफ सैंपल या डेटा सेट का जो है साइज वो क्या है। तो हमें अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? कैलकुलेशन होगी हमारे पास, हमने नंबर ऑफ एन यानी एन की जो वैल्यू है हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेटा सेट, वो हमने यहाँ पे पुट करना है, उसका लॉग ले लेना है। दो लॉग है, दो किस्म के लॉग हैं, एक बेस 10 का लॉग है, एक नेचुरल लॉग है। तो आपने नेचुरल लॉग नहीं यूज करना, लॉग ऑफ ई नहीं यूज करना, लॉग ऑफ बेस 10। यूजली अगर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो वहाँ पे एल ओ जी वाला की आपने यूज करना है, एल एन वो नेचुरल लॉग के लिए होता है, वो यूज नहीं करना। तो लॉग ऑफ एन जब आप लेंगे तो आपके पास कोई वैल्यू आएगी, यानी कोई मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3.3 के साथ। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दैट वैल्यू आप उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो वहां से जो आपके पास वैल्यू आएगी, फिगर आएगी, दैट विल बी के। अब रिमेंबर that value or that figure will always be a fractional value। तो फिर हमें यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की डिफरेंट रूल्स या टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं कि हमने के जो है, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू है तो नंबर ऑफ वैल्यूज जो है या नंबर ऑफ ग्रुप्स वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, दैट विल बी अ डिस्क्रीट वैल्यू, फॉर एग्जांपल 4 5 6 7 8। तो 5.5 या 5.6 या 5.7 जो है वो नंबर ऑफ ग्रुप नहीं हो सकते। तो हमने उनकी कंप्लीट वैल्यू यूज़ करनी है। तो अगर वो 0.5 से, यानी फ्रैक्शन में अगर आपके पास वैल्यू 0.5 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, 6 या 7 आ रही है, तो आप उसको नेक्स्ट नंबर में, डिजिट में उसको राउंड ऑफ कर दें। फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू आ रही है जी 5.7 और 5.6, तो फिर ऐसी वैल्यू को आपने 6 कंसिडर करना है, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू 5.4 5.5 5.3 है तो इसको आप 5 ही कंसिडर कंसिडर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, आफ्टर डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ ग्रुप्स और क्लासेस, द नेक्स्ट स्टेप इज रेंज ऑफ डेटा सेट। रेंज ऑफ डेटा सेट मीन्स हमने अपने डेटा सेट में देखनी है कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। वी हैव टू डिटरमिन, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम और एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द of our data set. Then we will subtract them, we will subtract the minimum value from maximum value. So the value after subtraction, the value which comes after subtraction will be our range, that is range का formula भी लिखा हुआ, range is maximum or largest value minus minimum value or smallest value। so आप इस by using this formula आप range calculate करेंगे, ठीक है। after calculating range, रेंज की कैलकुलेशन के बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप पे जाना है या नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो है क्लास विड्थ। यानी हमने नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड कर ली हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स हमने डिसाइड कर ली हैं, हमने डेटा सेट का रेंज हमने डिसाइड कर लिया है। तो अब हमने ये देखना चाहिए, ये देखना होगा कि किसी भी गिवन क्लास का या ग्रुप का साइज कितना है, यानी उनमें कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है r डिवाइडेड बाय k। एक्चुअली क्लास विड्थ को, ये क्लास साइज ऑफ क्लास को हम डिनोट करते हैं स्मॉल h से, और इसका फार्मूला रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्रुप्स है, r डिवाइड बाय k। तो r इज रेंज ऑफ डेटा एंड k इज नंबर ऑफ ग्रुप्स। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। स्टूडेंट्स एक्चुअली थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है नेक्स्ट पेज पे आने के में, तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि हमारे पास इसका नेक्स्ट पेज आ जाए, ठीक है।
ओके गाइस, एक्चुअली अभी मुझे प्रॉब्लम आ रहा है इस पेज को नेक्स्ट पेज पे मूव करने के लिए। तो चले हम ऐसे करते हैं कि भाई आप जो अपने पास हैंडआउट्स रखे होंगे या आप पेन और कॉपीज ले लें, क्योंकि आपके पास लेक्चर तो वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म है, आप वहाँ से डाउनलोड भी किया होगा या आप उसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। तो चले हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अगर अब जब हमने रेंज ऑफ डेटा, क्लास विड्थ और नंबर ऑफ ग्रुप्स और क्लासेस जब हमने डिटरमिन कर लिए हैं, तो उसके बाद हमारे पास होगा स्टार्टिंग पॉइंट, यानी हमने अपने फर्स्ट ग्रुप की फर्स्ट वैल्यू क्या लेनी है, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, व्हाट विल बी द फर्स्ट ग्रुप। और फर्स्ट ग्रुप डिटरमिन करने के लिए उसकी स्टार्टिंग वैल्यू देखिए, किसी भी ग्रुप या क्लासेस, बेसिकली ये क्लासेस या ग्रुप्स जो हैं ये इंटरवल्स की फॉर्म में होते हैं, इनको हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं इन ग्रुप्स को। अब चूंकि ये इंटरवल है तो इनकी दो वैल्यूज होंगी हर, लाइक एवरी इंटरवल, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसका क्लोजिंग वैल्यू होगी। अब तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमने डिटरमिन करना है, व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ और फर्स्ट क्लास। तो यूजुअली हम अपने डेटा सेट की सबसे मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट ग्रुप की जो फर्स्ट वैल्यू या स्टार्टिंग वैल्यू होगी दैट विल बी द स्मॉलेस्ट और मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट ऑफ आवर डेटा सेट। अगर हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा, कुछ केसेस में नहीं भी होता, तो फिर हम क्या करते हैं कि उस जो मिनिमम वैल्यू हमारे डेटा सेट की होती है उससे भी हम किसी और मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास अगर वन है हमारी मिनिमम वैल्यू और हम वन से स्टार्ट करके अपनी क्लासेस बना रहे हैं, लेकिन जो टोटल डेटा सेट है या गिवन डेटा सेट उन नंबर ऑफ क्लासेस में गिवन विथ के लिए नहीं अरेंज हो रहा, तो फिर हम वन से मूव कर सकते हैं और स्मॉलेस्ट वैल्यू पे, लाइक 0.5, 0 या इवन -1, -0.5, -1 या ये वैल्यूज भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बट वो रेयरली कुछ केसेस में होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस हम हमारे हम जो है वो जो मिनिमम या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा सेट है वही से हमारा काम चल जाता है, यानी अरेंजमेंट या ऑर्गेनाइजिंग जो है वैल्यूज की उन नंबर गिवन नंबर ऑफ ग्रुप्स पर गिवन क्लास विथ हो जाती है। तो अब अगर हम अच्छा, फिर नेक्स्ट वैल्यू जो है, यानी उस फर्स्ट ग्रुप की फर्स्ट वैल्यू जब हमने डिटरमिन कर ली, लेट्स से दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा सेट, तो नेक्स्ट वैल्यू या उस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ दैट क्लास क्या होगी, तो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ दैट क्लास विल बी डिटरमिन्ड बाय क्लास विथ हमें ये बताएगी कि इस क्लास की अब नेक्स्ट या क्लोजिंग वैल्यू क्या होनी है। और फिर इसी तरह नेक्स्ट जो क्लास है, यानी सेकंड फर्स्ट क्लास हमने कंप्लीट कर ली, स्टार्टिंग पॉइंट हमने कंसिडर किया, फिर नेक्स्ट उसकी क्लोजिंग वैल्यू हमने कंसिडर की। एक्सक्यूज मी गाइस। ऑनलाइन क्लासेस में थोड़े इश्यूज हमारे साथ रहेंगे, सम टाइम डिस्ट्रक्शन रहेगी फ़ोन की, किड्स की, लाइक हो सकता है आपको भी हो। एक्चुअली इस वक्त चूँकि फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ तो मेरी तरफ से ज़्यादा होगी, तो उसके लिए मैं आपसे जो है अपॉलॉजी करता हूँ, मैं माजरत कबूल कीजिएगा। अच्छा, फिर हम चलते हैं जी नेक्स्ट, अपना जो स्टेप था, जब हमने फर्स्ट क्लास हमने कंसिडर ये कंस्ट्रक्ट कर ली, तो फिर नेक्स्ट क्लास पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी फर्स्ट क्लास की क्लोजिंग वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू होती है, ठीक है। और इसी तरह फिर उस क्लास की क्लोजिंग वैल्यू हम डिटरमिन करेंगे यूजिंग क्लास विथ एंड सो ऑन। तो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ हमने ग्रुप्स हमने डिटरमिन किए हैं 5, 6, 7, जब वो क्लासेस बन जाएंगी तो वो हमारे पास जितना वो नंबर हमने अचीव कर लिए तो हम रुक जाएंगे, हम स्टॉप कर लेंगे। अच्छा, अब इसके लिए हम एक एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमारे पास इसके लिए बाकायदा है कि न्यूमेरिकल एग्जांपल है। अगर आप अपने फर्स्ट लेक्चर में पेज नंबर 2 पे जाएं तो वहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है। हमारे पास एक डेटा सेट है 1, 3, 9, 7, 6, 13, 10, 11, 4, 5 अप टू, और लास्ट वैल्यू इसकी 23 है। तो हमारे पास ये डिफरेंट, हमारे पास ये 25 ऑब्जर्वेशन है, रैंडम ऑब्जर्वेशन है। अब हमने देखना ये है कि हमारा सैंपल साइज क्या है, n क्या है, दैट इज द नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दिस गिवन डेटा सेट। तो n जो होगा दैट विल बी सैंपल साइज, जो हम अर्ली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, वो सैंपल साइज होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन
गिवन डेटा सेट और इन सैंपल। तो सैंपल साइज या स्मॉल एन हमारे पास वैल्यू आ रही है 25। तो अब इन 25 ऑब्जर्वेशन को हमने फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, या इन 25 रैंडम ऑब्जर्वेशन को हमने ऑर्गेनाइज करना है इन क्लासेस। तो उस प्रोसेस पूरे को हम कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम कौन सा स्टेप करेंगे? द फर्स्ट स्टेप विल बी डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ ग्रुप्स, कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होने चाहिए। उसके लिए हम फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 log ऑफ n। तो n जो है ये हमारे पास 25 है, तो 25 जब हम उसका लॉग लेंगे तो दैट विल बी 1.397, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.3 से, और फिर जब वो आएगा हमारे पास वैल्यू 4.6 राउंड ऑफ करके, और फिर जब हम 8 करते हैं तो दैट इज 5.6। तो इस 5.6 को हम अप्रॉक्सीमेटली 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास के 6 आ गया। के मींस नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है 6, यानी इन 25 ऑब्जर्वेशन को हमने 6 ग्रुप्स और क्लासेस में हमने ऑर्गेनाइज करना है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रेंज ऑफ डेटा। तो रेंज ऑफ डेटा जो है उसके लिए फार्मूला हम कर सकेंगे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आप इन 25 ऑब्जर्वेशन में देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू 24 है। ऑल्दो ये दो दफ़ा है, लेकिन आपने मैक्सिमम वैल्यू चूंकि उसका मैग्नीट्यूड 24 है तो आपने उसको एक ही कंसिडर करना है, दैट इज 24। अब मिनिमम वैल्यू देखें तो 1 है, तो 24 माइनस 1 जो है वो 23 हमारे पास आ जाएगा। तो रेंज ऑफ डेटा जो है दैट इज 23। अब हमने क्लास विड्थ डिटरमिन करनी है। तो क्लास विड्थ का फार्मूला है जी आर डिवाइड बाई के, इट मीन्स रेंज ऑफ डेटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो रेंज है हमारे पास 23 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो ये आ जाता है हमारे पास 3.4, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 4 ले लेते हैं। यानी नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे पास 6 आ गया, और नंबर ऑफ सॉरी क्लास विड्थ जो होगी हर क्लास की दैट विल बी 4। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टार्टिंग वैल्यू से। तो लाइक आई सेड कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी वो हमेशा स्मॉलेस्ट और मिनिमम वैल्यू होती है उस क्लास की, तो सॉरी उस डेटा सेट की। उससे भी छोटी वैल्यू ले सकते हैं, बट यूजुअली वी स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा सेट जो है वो 1 है। आपने सबसे पहले देखें, अगर अपने लेक्चर में देखें, लेक्चर पेज नंबर 3 में देखें, तो आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये दो कॉलम बने हुए हैं। तो क्लास इंटरवल में फर्स्ट क्लास अब हमने डिटरमिन करनी है कि व्हाट विल बी द फर्स्ट क्लास। सो दैट विल बी फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास की सबसे पहले हमने स्टार्टिंग वैल्यू या मिनिमम उसकी फर्स्ट वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू, तो स्टार्टिंग वैल्यू विल बी 1, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ गिवन डेटा सेट। नाउ द क्लोजिंग वैल्यू। तो क्लोजिंग वैल्यू क्या आ गई? अब हमने क्लास विथ देखना है, हमारा क्लास विथ क्या है। तो क्लास विथ हमने जब डिटरमिन किया तो दैट वाज 4। तो अब हमारे पास जो है वो 4 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आने चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, याद रखें कि ये जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग वैल्यू होगी ये दोनों इंक्लूसिव होती है। जब हम क्लास विथ कैलकुलेट करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज 1 एंड सॉरी स्टार्टिंग वैल्यू एंड क्लोजिंग वैल्यू वो हमेशा इंक्लूसिव होती हैं। तो जब हमने 4 देखना है यानी इसकी क्लोजिंग वैल्यू देखनी है तो हमने स्टार्ट करना है 1 से, चूंकि हमारी फर्स्ट वैल्यू 1 है। अब टोटल वैल्यूज आ सकती हैं 4, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो 1 2 3 4। ठीक है, अब हम 5 पे नहीं जा सकते, 6 पे नहीं जा सकते, 3 पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि क्लास विथ 4 है। तो ईच क्लास विल हैव 4 वैल्यूज, नॉट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यानी वैल्यू नंबर 1 से लेके वैल्यू नंबर 4 तक की वैल्यूज जो है वो फर्स्ट क्लास में आएंगी। तो फर्स्ट वैल्यू या स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 1 आ गई है, क्लोजिंग वैल्यू इस क्लास की आएगी 4। ठीक है, अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सेकंड क्लास। अब सेकंड क्लास क्या होगी? लाइक आई सेड के क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास से जो नेक्स्ट वैल्यू होगी दैट इज वो हमारी जो है स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ सेकंड क्लास होगी। तो फर्स्ट क्लास की जो क्लोजिंग वैल्यू है दैट इज 4। अब 4 से नेक्स्ट वैल्यू होती है 5, तो 5 विल बी द स्टार्टिंग वैल्यू और लोअर वैल्यू। अब फिलहाल उसको स्टार्टिंग वैल्यू कह देते हैं, बाकायदा मैं आपको हर एक की जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है वो बाद में करवाता हूँ। तो 5 जो है वो सेकंड क्लास की स्टार्टिंग वैल्यू होगी। अब इस सेकंड क्लास की क्लोजिंग वैल्यू क्या होगी? तो अगेन हमने 5 से काउंट करना है 4 तक। 4 5 6 7 8, 5 6 7 8 क्योंकि क्लास विथ 8 है। तो 5 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, सेकंड 6 सेकंड वैल्यू, 7 थर्ड वैल्यू एंड 8 विल बी फोर्थ वैल्यू। तो चूंकि हमारे पास क्लास विथ 4 है तो फिफ्थ हमने इसमें इंक्लूड नहीं करनी, जो
कि हमारे पास 9 बन रहा है, तो हमने आना है जी 8 पे। तो अब हमारे पास सेकंड क्लास की क्लोजिंग वैल्यू होगी 8। इसी तरह हमने थर्ड क्लास पे जाना है, तो थर्ड क्लास की अब जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो सेकंड क्लास की क्लोजिंग वैल्यू जो है उससे नेक्स्ट वैल्यू होगी। अब सेकंड क्लास की क्लोजिंग वैल्यू है 8, तो उससे नेक्स्ट वैल्यू बनती है 9, तो 9 विल बी द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ थर्ड क्लास। तो फिर इसकी क्लोजिंग वैल्यू हमने देखनी है, तो 9 10 11 12, तो 12 होगी हमारे पास इसकी क्लोजिंग वैल्यू। सिमिलरली हमने फिर फोर्थ क्लास की स्टार्टिंग वैल्यू 13 और फिर इसकी क्लोजिंग वैल्यू 16, फिर जो हमारे पास फिफ्थ क्लास है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 16, फिर उसकी क्लोजिंग वैल्यू 20 और फिर 21 लास्ट क्लास की स्टार्टिंग वैल्यू और 24 उसकी क्लोजिंग वैल्यू। तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल, ये हमारे पास क्लासेस बन गई। ठीक है, अब याद रखें कि देखिए ये क्लासेस जितनी भी हैं इनकी अगर आप स्टार्ट से देखें और आखिर तक जाएं, यानी फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट क्लास की फर्स्ट वैल्यू से यानी स्टार्टिंग वैल्यू से लास्ट क्लास की क्लोजिंग वैल्यू तक जाएं, तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज डेटा था। इनिशियल डेटा हमारे पास रैंडम था, कोई किसी ऑर्डर में नहीं था। अब क्लासेस हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई हैं। अब इन क्लासेस को हम कहते हैं, ग्रुप्स को हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। अब इन क्लास इंटरवल्स की दो इंटरवल्स हैं, तो इनकी दो वैल्यूज हैं, एक स्टार्टिंग वैल्यू है, एक उसकी क्लोजिंग वैल्यू है, यानी एक इसका लोअर वैल्यू है, लोअर लिमिट, इसको लोअर क्लास इंटरवल भी कहते हैं, और जो उसकी क्लोजिंग वैल्यू है इसको हम अपर क्लास इंटरवल या अपर क्लास लिमिट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास पे आते हैं, फर्स्ट क्लास बनी हमारे पास 1 to 4, तो 1 जो है हमारे पास दैट इज लोअर क्लास लिमिट और लोअर क्लास इंटरवल ऑफ फर्स्ट क्लास, और 4 इज द अपर क्लास लिमिट और अपर क्लास इंटरवल ऑफ द फर्स्ट क्लास। इसी तरह 5 जो है वो लोअर क्लास लिमिट है सेकंड क्लास की, और 8 जो है वो अपर क्लास लिमिट है या क्लास इंटरवल भी आप उसे कह सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास की। तो सो एंड सो ऑन, यानी जितनी भी हमारे पास इनिशियल वैल्यूज हैं, स्टार्टिंग वैल्यूज हैं किसी भी क्लास की, उनको हम लोअर क्लास लिमिट्स या लोअर क्लास इंटरवल कहते हैं, और जो उनकी क्लोजिंग वैल्यूज हैं उनको हम अपर क्लास लिमिट्स और अपर क्लास इंटरवल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं ये फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रीक्वेंसीज। अब हमने फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट करनी है, तो हमने आना है जी फर्स्ट क्लास पे। देखें पेज नंबर 3 पे ही आप आए, नीचे एक टेबल बना हुआ है, तो क्लास इंटरवल में जाते हैं 1 to 4। तो फर्स्ट क्लास में देखते हैं कि आउट ऑफ 25, वो जो रैंडम 25 ऑब्जर्वेशन थी उनमें से कितनी ऑब्जर्वेशन जो है वो रेंज 1 to 4 है, यानी 1 से 4 तक हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, इंक्लूडिंग 1 एंड 4। तो अगर हम देखें तो देखें 1 है, फिर 1 है, 2 3 4 4 4, यानी 1 दो दफा है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 तीन दफा है, तो ये टोटल बन जाती है 7। तो यानी फर्स्ट क्लास की जो टैली आ जाती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द गिवन डेटा सेट फॉलोइंग इन फर्स्ट क्लास इज 7। कौन कौन सी है जी? 1 देन अगेन 1। अब हर एक वैल्यू जो है वो एक्चुअली एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है। अब 1 अगर रिपीट हो रहा है 2 मरतबा, 3 मरतबा या 4 मरतबा, तो आपने उसको सिंगल टाइम नहीं लेना, हर वो एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह कोई और वैल्यू अगर रिपीट हो रही है दो दो या तीन या चार दफा, तो आपने हर दफा उसको अब काउंट करना है, उसको एक सिंगल टाइम नहीं लेना, बिकॉज ईच एंड एवरी वैल्यू इज अ डिस्टिंक्ट वैल्यू। ठीक है, अगरचे उनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो हो सकता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं फर्दर लेटर हम क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रही तो लेट्स से हम हमारे पास हम हाइट्स की एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हम क्लास की हाइट्स, क्लास है स्टूडेंट्स का, उसकी हम जो है वो हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए आपके पास एक से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी हाइट सिमिलर हो। ठीक है, इसी तरह अगर वेट की बात करें तो दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं उनकी उनका वेट सिमिलर हो सकता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स का हाइट या वेट अगर सिमिलर है तो हम उनको एक स्टूडेंट कंसिडर नहीं कर सकते, वो अलग अलग ही स्टूडेंट्स रहेंगे। दैट्स वाई ईच एंड एवरी विल बी एवरी वैल्यू विल बी काउंटेड सेपरेटली। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास वो जो कि 5 to 8 है, यानी 5 से स्टार्ट होकर 8 पे क्लोज हो रही है। तो अब हमने देखना है कि आउट ऑफ दीज गिवन 25 रैंडम ऑब्जर्वेशन कितनी वैल्यूज हैं जो 5 से 8 के दरमियान है, इंक्लूडिंग 5 एंड 8। तो वो तीन वैल्यूज हैं, दैट इज 5 6 एंड 7। तो
फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास आ जाएगी 3। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 7 थी, सेकंड की 3 आ गई। इसी तरह 9 to 12 हम देखते हैं कि कितनी इस गिवन 25 ऑब्जर्वेशन है, 9 to 12 कितनी ऑब्जर्वेशन है, तो वो अगेन 3 है, दैट इज 9, 10 and 11। इसी तरह 13 to 16 देखते हैं तो वो हमारे पास 13, 15, 16, ये अगेन 3 ऑब्जर्वेशन आ गई। 17 to 20, 17, 19, 20, ये अगेन 3 ऑब्जर्वेशन हैं। 21 to 24 देखते हैं तो वो हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन, दैट इज 21, 22, 23, 23, 24 एंड 24। ये 6 ऑब्जर्वेशन बन जाती हैं। तो ये हमने जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास बन रहा है, तो ये हमारे पास एक्चुअली फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमने हर एक क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख लिया। तो ये अब हमारे पास टोटल प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने अगर वेरीफाई करना है कि कोई ऑब्जर्वेशन हमसे मिस तो नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का हम सम ले लेते हैं। ठीक है, by adding all the values in frequency column or summing all the values in frequency column, we will get the same number, that is the sample size. For example, देखिए अब हमारे पास sample size 25 था, यानी इनिशियली हमें 25 ऑब्जर्वेशन गिवन थी, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम करेंगे तो that must be equal to 25, क्योंकि इन्हीं 25 रैंडम ऑब्जर्वेशन को अभी हमने अरेंज किया है इस क्लासेस में जो कि असेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी याद रखें कि ये जो हमारे पास ग्रुप्स बनी हुई हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ग्रुप्स हैं, ये म्यूचुअली डिस्जॉइंट है, इनके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी बनती है जहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूटी होती है क्लासेस में। जब कंटिन्यूटी होती है तो फिर उनको हम क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में किसी भी क्लास की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है। उसका हमने डिस्कस भी किया था, शायद आगे भी देखेंगे। तो आई होप कि आप का लेक्चर जो है आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास सिचुएशन जो है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशंस नहीं है। इश्यूज रहते हैं बीइंग अ डेवलपिंग, being a member of a developing nation or citizen of a developing country। तो हमारे पास जो हमारी जो टूल्स और टेक्नोलॉजीज हैं वो भी आइडियल नहीं है, बट वी हैव टू वर्क विद अवेलेबल थिंग्स। जो भी हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं, टूल्स हैं, हमें उन्हीं के साथ काम करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें जो हैं, हो सकता है मेरे एंड में थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हों, यानी जो भी वीडियो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ या जो लेक्चर है, पहले तो मुझे ये आया कि भी मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा था, तो अब विल डिस्कस विद माय फ्रेंड्स। तो आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा हमारा। लेकिन अगेन बहुत सारे इश्यूज रहेंगे आपके एंड पे भी, मुझ पे, मेरे एंड पे भी। तो हमने मिल के इनको सॉल्व करना है, क्योंकि हमने आगे चलना है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम 3-4 महीने स्टक रहे अपनी एजुकेशन को या अपने काम सारे छोड़ दें। तो हमने किसी न किसी तरह सिस्टम को चलाना है, तो वो कॉपरेशन से होगा। देखिए, मेरी तरफ से बीइंग अ टीचर आई एम सपोज टू कोऑपरेट विद यू पीपल। आप लोग मेरे छोटे भाई समझें, छोटे बच्चे समझें, लेकिन ये है कि क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है मेरी, मैं आपके साथ फुली कोऑपरेट करूंगा। एंड आई एक्सपेक्ट द सेम लेवल ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम यू। आपकी कोऑपरेशन ये होगी कि आपने मेरे साथ इन टच रहना है, आपने क्लासेस लेनी है। ठीक है, जो जो इश्यूज आ रहे हैं आप उसको मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दानियाल शायद आपका सीआर है या कोई क्लास फेलो जो कि एलएमएस पे मेरे साथ जो है वो इन टच रहता है। तो आई होप कि भाई मेरी रिक्वेस्ट ये होगी आप लोगों से कि आप अगर अपना बना लें, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, ताकि हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन उसमें चलता रहे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।